بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ایک شخص حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں اپنا مقدمہ لے کر حاضر ہوا اور کہنے لگا، بادشاہ سلامت، میرا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ میرے پاس ہیرے جواہرات سے بھری ہوئی ایک تھیلی تھی۔ میں نے کہیں سفر جانے لگا تو میں نے سوچا کہ ہیروں سے بھری ہوئی تھیلی اگر میں اپنے ساتھ لے گیا تو خدا نخواستہ رستے میں میرے ساتھ کوئی حادثہ نہ ہو جائے اور میری عمر بھر کی کمائی ایک جھٹکے میں میرے ہاتھ سے نکل نہ جائے۔ رستے میں کوئی چور چکار بھی مجھے مل سکتا ہے جو اس ہیروں سے بھری تھیلی کو مجھ سے چھین لے تو میری ساری زندگی کا سرمایہ مجھ سے جاتا رہے گا۔ لہٰذا میں نے سوچا کہ اس کو کسی ایماندار بندے کے حوالے کر کے جاتا ہوں اور واپس پہ لے لوں گا۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ اس علاقے کے ایک وزیر کے پاس گیا اور میں نے ان ہیروں سے بھری ہوئی تھیلی کو اس کے پاس امانتاً رکھوا دیا اور پھر میں سفر پر نکل گیا۔ جب میں اپنا کام کر کے واپس آیا تو میں نے اس وزیر کے پاس گیا تو میں نے اس سے وہ اپنی ہیروں سے بھری ہوئی تھیلی واپس مانگی تو اس نے وہ ہیروں سے بھری ہوئی تھیلی مجھے واپس کر دی۔ مگر جب میں گھر آیا میں نے اس تھیلی کو کھولا تو پتہ چلا کہ اس میں ہیرے نہیں، کھوٹے سکے ہیں۔ بظاہر تو وہ تھیلی کہیں سے پھٹی بھی نہیں تھی اور جو سلائی میں نے کر کے دی تھی بالکل اسی طرح وہ تھیلی مجھے واپس دی گئی۔ مگر تعجب کی بات یہ تھی کہ اس میں ہیروں کی جگہ کھوٹے سکے بھرے ہوئے تھے۔ جب یہ تھیلی لے کر میں واپس اس کے پاس گیا اور میں نے اس سے کہا کہ تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، میں نے تو تمہیں ہیروں سے بھری ہوئی تھیلی دی تھی مگر اس میں سے تو کھوٹے سکے نکلے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ میں نے تمہارے ساتھ دھوکہ کر رہا ہوں؟ اور اس معاملے کو لے کر ٹال مٹول کرنے لگا اور جھوٹ بولنے لگا اور مجھ سے کہنے لگا، دیکھو تھیلی کہیں سے پھٹی ہوئی ہے۔ میں نے کہا نہیں۔ اس نے کہا کہیں سے سلائی ادلی ہوئی ہے۔ میں نے کہا نہیں۔ اور کہیں سے کھلی ہوئی ہے۔ میں نے کہا نہیں۔ تو پھر تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ میں نے ہیروں سے بھری ہوئی تھیلی کو بدل کر اس میں کھوٹے سکے ڈال دیے ہیں اور تمہارے ساتھ دھوکہ کیا ہے؟ تم نے جیسے مجھے دی تھی تھیلی میں نے ویسے ہی تمہیں واپس کی ہے۔ وہ شخص سلطان محمود غزنوی سے کہنے لگا، اللہ اور اللہ سے رسول کا واسطہ ہے، بادشاہ سلامت، مجھے میرا حق دلوائیں۔ میں اس معاملے میں سچا ہوں۔ میری وہ تھیلی واقعہ ہی ہیروں سے بھری ہوئی تھی۔ میری عمر بھر کی کمائی تھی اور میں لٹ گیا ہوں، میں برباد ہو گیا ہوں، میری کچھ مدد کیجیے۔ سلطان محمود نے اس کے بات سنی اور اس سے کہا کہ تم ابھی چلے جاؤ، جب میں تمہیں بلاؤں تو واپس آ جانا۔ شخص وہاں سے چلا گیا۔ اس شخص کے جانے کے بعد سلطان محمود غزنوی نے دربار میں اعلان کروا دیا کہ 3 دن کی چھٹی ہے، 3 دن دربار بند رہے گا۔ 3 دن کے لیے دربار کو برخاست کیا جاتا ہے۔ وہ 3 دن کے بعد دربار دوبارہ لگے گا۔ اس طرح اس دربار میں چھٹی ہو گئی اور ہر کوئی وہاں سے چلا گیا۔ جب بادشاہ تنہا تھا، سلطان محمود غزنوی نے ایک چھری منگوائی۔ جس تخت پر بیٹھا تھا اس کے نیچے ایک گدا تھا اور وہ جس گدے پر بیٹھا ہوا تھا اس نے اس چھری سے
उस गद्दे को फाड़ दिया और जाते हुए कहने लगा कि 3 दिन तक इस दरबार में कोई शख्स दाखिल ना हो सिवाय सिर्फ सफाई वाले के। जैसे यहाँ झाड़ू पोछा करने वाला है सिर्फ वही आए, उसके अलावा कोई शख्स यहाँ पर दाखिल ना हो। उस तरह 3 दिन गुजर गए, यहाँ कोई दाखिल ना हुआ। उस दरबार का दरवाज़ा बंद कर दिया गया। बादशाह के जाने के बाद जब सफाई वाला उस दरबार में दाखिल हुआ और उसने अपनी सफाई का काम शुरू किया तो देखा बादशाह के तख्त का गद्दा फटा हुआ है। उसने जब वो गद्दा देखा कि वो गद्दा फटा हुआ है, उसने फ़ौरन ये सोचा कि अगर ये मामला मैंने ना उठाया और इसकी तफ्तीश ना करवाई तो हो सकता है कि मेरी इस दरबार से छुट्टी हो जाए, मेरी मुलाजमत जाती रहे। और उसने वहाँ शोर मचा दिया और कहने लगा कि बादशाह जिस तख्त पर बैठा था वो गद्दा फटा हुआ है। हैरत तो ये है बादशाह को पता चल गया तो वो ये हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा, वो तो हमें हमारी नौकरियों से निकाल देगा। ये शोर सुनकर वहाँ के मौजूद काफ़ी सारे लोग इकट्ठे हो गए जो दरबार में हुआ करते थे और वो उस अफसोस का इजहार करने लगे कि आखिर ये क्या हुआ और ये गद्दा कैसे फटा। इसकी असल वजह जानने की कोशिश की गई लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये कैसे हुआ और सब घबरा गए कि अगर बादशाह को इस बात का पता चल गया उसकी गैर मौजूदगी में ये गद्दा किसी ने फाड़ दिया है तो वो बहुत नाराज़ होगा। उससे बहुत सारे लोगों की नौकरियों से भी निकाल दिया जाएगा और हो सकता है कि इसमें किसी की जान भी जा सकती है। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस मामले का हल करने की पूरी कोशिश की और फैसला क्या किया कि किसी रफूगर को ढूंढ कर लाएं जो इस गद्दे को सही कर सके और उसका ठीक ठाक मुआवजा भी दिया जाएगा और सुल्तान महमूद गजनबी को पता भी ना चल सकेगा कि गद्दा कहाँ से फटा हुआ था। उन्होंने वहाँ के एक बेहतरीन रफूगर को बुलवाया जिसका नाम अहमद था। उसे सारा मामला बताया और उसे कहा कि इस गद्दे को ऐसे रफू करना कि सुल्तान को पता ना चल सके। उसने कहा ठीक है। इसने गद्दे को रफू किया और चला गया। 3 दिन गुजर गए और 3 दिन के बाद दोबारा दरबार लगा तो बादशाह सलामत गद्दे पर आकर बैठे तो उन्होंने गद्दे पर हाथ लगाया तो देखा कि गद्दा तो बिल्कुल बहुत महारत से रफू कर दिया गया है और उसको बिल्कुल पता नहीं चल रहा था कि ये गद्दा कहाँ से काटा गया था। सुल्तान ने उसी वक्त अपने वज़ीर को बुलवाया और कहा कि ये गद्दा किसने सिलाई किया है। तो सब ने कहा सुल्तान हमें कैसे पता, ये गद्दा तो ऐसे ही था जैसे आप छोड़कर गए थे। सुल्तान ने कहा देखो झूठ मत बोलो, ये गद्दा मैंने खुद फाड़ा था। मुझे तुम साफ हकीकत बता दो कि ये गद्दा किस ने रफू किया है। मुझे इस शख्स को पता बताओ और इस शख्स को हाज़िर करो। जब वज़ीरों को इस बात का पता चला ये गद्दा सुल्तान ने खुद फाड़ा था, वो शर्मिंदगी से सर नीचे कर दिया और बताया कि जी जनाब ये गद्दा हमने रफू करवाया है और जिस शख्स ने ये गद्दा रफू किया है उसका नाम अहमद है। उसके बाद उस रफू करने वाले को हाज़िर किया गया। सुल्तान महमूद के दरबार में हाज़िर किया गया तो उन्होंने पूछा कि ये गद्दा
तुम ने रफू किया है? उसने कहा जी हजूर मैंने किया है। तो सुल्तान उसको लेकर अकेले में चले गए और उसने वही खोटे सिक्के वाली थैली उनके सामने रखी और कहा कि इस थैली को पहचानते हो? उसने कहा जी हजूर। सुल्तान महमूद गजनबी ने कहा कि इस थैली को तुमने रफू किया है, उसमें क्या था? तो उसने रफू करने की तमाम मामला सुल्तान महमूद गजनबी के सामने रख दिया और हजूर मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। मुझे वहाँ से वज़ीर के एक गुलाम ने मुझे ये थैली लाकर दी और मुझे वज़ीर का पैगाम दिया कि इस थैली को खोटे सिक्कों से भर दो और इस तरह रफू करो कि पता ना चल सके। तो हजूर मैंने वैसे ही किया और इसमें से मुझको हिस्सा भी दिया गया था। सुल्तान ने कहा ठीक है तुम चले जाओ, मगर जब मैं तुम्हें बुलाऊं तुम्हें वापस आना होगा। उस रफूगर ने कहा ठीक है। उसके बाद सुल्तान ने उस वज़ीर को अपने दरबार में बुलाया और अब उससे कहा कि तुमने फलां शख्स के साथ इस तरह धोखा किया है, उसकी अमानत में खयानत की है। तो वो वज़ीर ना माना। सुल्तान महमूद गजनबी ने कहा कि अभी तो मैं अकेले में पूछ रहा हूँ, तुम मुझे सच बता दो। अगर तुमने सच ना बताया तो कल भरे दरबार में पूछूंगा और अगर तुम्हारा झूठ साबित हो गया तो तुम्हें मनसब से भी हटा दिया जाएगा और लोगों के सामने तुम्हें जलील रुसवा भी होगे। इसने कहा नहीं हजूर मेरी सफ़ेद दाढ़ी को देखें, मैं ऐसा नहीं कर सकता और मैं ऐसा शख्स नहीं हूँ। इसने अमानतन मेरे पास जो थैली रखवाई थी वो मैंने उसे वैसे ही उसको वापस की है। अब मुझे नहीं पता कि उसमें हीरे थे या खोटे सिक्के। सुल्तान महमूद गजनबी ने कहा ठीक है, अब भरे दरबार में ये बात होगी। जब उस शख्स को भरे दरबार में लाकर पूछा गया तो कि तुमने ऐसा काम किया है, तो वो अपनी बात पर कायम रहा और वो ना माना कि उसने ऐसा किया था। तो सुल्तान महमूद गजनबी ने फ़ौरन रफूगर को बुलवाया। उसको देखते ही वो वज़ीर हैरान और परेशान हो गया और शर्मिंदगी से उसकी गर्दन झुक गई। सुल्तान महमूद गजनबी ने कहा कि तुमने बहुत जुल्म किया है। तुमने एक गरीब आदमी के सारी उम्र की मेहनत करके जो उसने हीरे जवाहरात इकट्ठे किए थे तुमने उसके धोखा किया है, लिहाजा तुम्हें तुम्हारे मनसब से भी हटा दिया जाता है और मेरे दरबार से निकल जाओ। मुझे नज़र मत आना वरना तुम्हें इससे भी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। दोस्तों ये मत सोचो कि अगर आप गलती करते हो तो पता नहीं चलेगा, पता तो जो गलती करता है उसका चल ही जाता है। और मज़ीद हमारी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।